Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine, and safe at home. Welcome to our online education. Myself, Sengundar Sulakshna, and I will be teaching you economics. So, students, today we are here to see Standard 12th Economics, chapter number 5, Poverty. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 5 of the chapter. So students, now without wasting the time, let us have some few summarization, which means the revision of the previous portion, what we have seen previously on the video. So previously we have completed the state-wise and the magnitude effects of the absolute poverty. According to the state, what was the absolute poverty? It has been seen up that we have considered. In that we have seen that the Goa was having the least poverty of 5.06, somewhat like that aggregated percentage, and the Chhattisgarh was having 39.93 perfectly poverty, absolute poverty in the country India. So as India, in that we have seen Gujarat at the 10 to 20% of the poverty. In this from 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40, these four types of category of the poverty has been differentiated in the absolute poverty topic. After that we have completed the absolute poverty, then we have seen about the relative poverty. What is relative poverty? If you are seeing, relative poverty means a concept in which we see that when an individual is able to fulfill its need, but comparing the inequality distribution of the income of different people and different groups, due to that when the comparison has been seen between two different type of income of people, the one who is getting the lesser one is relatively poor to the one which is getting the highest income. In this manner we have seen an hypothetical example of 5 group from group 1 to group 5, in which we have considered 0 to 30,000 income up to 10 lakhs and above at the last category. So if you are we can say that considering one each and every group with each other, then we can say that one group is relatively poor to the another one which is earning the less is considered as the relatively poor. So until this we have kept the indicators of that relative poverty that we are going to see up today. So from that portion we are going to start up the today's portion. So students, without wasting the time, let us move on with that topic in a very detailed manner in the further portion from the textbook PDF in a very detailed manner. So students, now let us move on with the today's topic. Today we are going to see the indicators of the poverty. What are the indicators of the poverty? Let us see that in a very detailed manner. So I am going to read it in a very detailed manner. Listen it out carefully. The level of poverty and their components are called its indicator. In our country, various factors showing poverty are known as its indicators. Indicators are useful to know poverty and level of poverty. With this we can know the nature and measurement of poverty. The indicators of poverty are as below. अगर हमें कोई भी चीज़ का लेवल जानना हो तो उसकी कंपोनेंट्स यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक जानना ज़रूरी है, और उसको यूज़ अप करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी है. बट इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं, अगर हमें लेवल ऑफ पॉवर्टी की जैसे कोई भी नेशनल इनकम पर कैपिटा कोई भी चीज़ का लेवल या मेजरमेंट जानना है तो हमें उसके कंपोनेंट्स जानना जरूरी माना जाता है. कंपोनेंट्स मीन्स द फैक्टर दैट आर मेकिंग इट एज अ पर्टिकुलर टॉपिक और कंटेंट. में कैसे पॉवर्टी के लिए क्या क्या पर्टिकुलर फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते. तो कहीं ना कहीं ये जो कंपोनेंट्स हमें लेवल ऑफ पॉवर्टी को समझाता है उसे हम इंडिकेटर्स मानते हैं. हमारी कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी वेरियस फैक्टर्स जो है पॉवर्टी को बताता है, इसीलिए उसे हम इंडिकेटर्स भी बोलते हैं. इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं यूजफुल होता है हमें पॉवर्टी को समझाने में और कहीं ना कहीं उसको समझने में, रेदर देन दैट लेवल ऑफ पॉवर्टी, कौन से लेवल पे पॉवर्टी देखा जाता है वो समझने के लिए. विद दिस, इसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमें नेचर और मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी को समझना है अच्छे से तो उसके लिए हमें नीचे दिए गए इंडिकेटर्स को बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा. सो नाउ लेट अस स्टार्ट अप विद द फर्स्ट इंडिकेटर, पर कैपिटा हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. Per capita household expenditure is the amount of income a family spends on an average on consumptions of goods and services. It is calculated at the market price of durable goods like car,
washing machine, computer and so on. The nation's total spending on such good, it is divided by the total population to calculate this. The per capita consumption expenditure for developing country is much lower than that of the developed country, and in this sense developing countries are poor. The following table shows per capita consumption expenditure of many कंट्रीज. तो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? हाउस होल्ड का मतलब यू नो दैट घर खर्चा, कंजम्पशन मतलब घर के लिए जो खर्चे के लिए चीजें हमें खर्चा करने के लिए, जो चीजें कंज्यूम करने के लिए हमें जितना पैसा लगाना पड़ता है उसे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माना जाता है. पर कैपिटा मतलब आपको ये वर्ड पता है, पर इंडिविजुअल. तो यहाँ पे पर कैपिटा हाउस होल्ड माना गया. तो हाउस में तो एक इंडिविजुअल रहता नहीं है, तो एक फैमिली का जब एक अमाउंट, एक फैमिली एक कितना एवरेज अमाउंट गुड्स और सर्विसेज के पीछे खर्चा करता है, उस चीज को अगर कैलकुलेट करने की कोशिश किया जाता, वो भी मार्केट प्राइस में, खास करके ड्यूरेबल गुड्स के लिए. ड्यूरेबल गुड्स यानी जो गुड्स काफी लंबे टाइम तक देखा जा सकता है, जैसे कार ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, कंप्यूटर्स ले लो, ये सारे ड्यूरेबल गुड्स है. और ये सारे कहीं ना कहीं थोड़ा पैसे वाले नॉर्मल मिडिल क्लास हो उनके घर पे ज्यादातर वॉशिंग मशीन, कार, ये सब होता है. ठीक है, तो इंडिया के अंदर टोटल कितना चीज है, नेशन, नॉट ओनली नेशन, हर एक स्टेट में देखा जाता है, हर एक कंट्री में देखा जाता है, बट हम इंडिया की बात करेंगे पर्टिकुलर. इंडिया के अंदर ऐसे गुड्स के पीछे टोटल पॉपुलेशन में से कितनी चीज है, कितने लोग इसके पीछे कितना खर्चा कर पाते, ये जो एवरेज एस्टिमेशन निकाला जाता है उसे पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन माना जाता है. अगर पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो डेवलपिंग कंट्री जो होता है, जैसे कि इकोनॉमिकली जो प्रोग्रेस हो रहा है, इसलिए मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया. तो इंडिया की बात करें तो यहाँ पे स्टिल यू नो दैट मैनी घर पे वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, कार, ये सारी चीजें नहीं होती है, तो वो थोड़ा कम देखा जाता है. इसीलिए डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में डेवलपिंग कंट्री जो है वो थोड़ा गरीब माना जाता है. अभी आप यूएसए, यूके ले लो, गरीब हो उसके घर पे भी कंप्यूटर होगा, उसके घर पे भी एक छोटा सा कार तो मिल ही जाएगा, रेदर देन दैट वॉशिंग मशीन तो नॉर्मल हो गया है वहां के लोगों के लिए. तो उस तरीके से ये सारी चीजें उनके लिए तो नॉर्मल है, हमारे लिए वो थोड़ा अभी भी प्रॉब्लमेटिक है. तो इस तरीके से पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा जाता है. नीचे एक पर्टिकुलर टेबल दिया है जिस टेबल के ऊपर ये सारी चर्चाओं को अच्छे से किया है. Let us see that in a very proper manner. Table 5.4 per capita consumption expenditure country fixed price of 2005 in US dollar year 2014. तो यहाँ पे कंट्रीज के नाम दिए हैं, यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस 2005 में जो फिक्स्ड प्राइस है उसको बेस में लिया गया, यूएस के डॉलर में बताया गया. बट ये स्टडी कब किया गया था? तो ये स्टडी 2014 में किया गया था, 2014 में एनालाइज किया गया था, बट हमने रेट 2005 का लिया है. तो यूएसए $31,469, UK $25,828, Japan $22,149, Pakistan $603, China $1,420 and India $725. Source www.worldbank.organization. तो ये जो सोर्स ऑफ टेबल है www.worldbank.organization से निकाला गया. यहाँ पे यूएस की बात करते हैं तो यूएस है $31,469. एक फैमिली जो अपने पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कार, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ों के लिए इतना पैसा डॉलर में खर्चा करता है. वही अगर कंपैरेटिवली पाकिस्तान, इंडिया, चाइना की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, जापान यूएस जितना भी नहीं है, 22,000 तक करता है. पाकिस्तान 603 सबसे लीस्ट देखा गया है, इंडिया 725 एंड चाइना 1420. बाई पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया इज गिवन इन द लास्ट 3 बॉटम. वी कैन से दैट यहाँ पे इन लोग डेवलपिंग पेस में और ऊपर के तीनों डेवलप्ड पेस में देखा जाता. तो कंपैरेटिव टू डेवलपिंग थोड़ा पुअर है, ये हम बोल सकते हैं. सो ये हुआ फर्स्ट टॉपिक. तो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन. अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन ऑन द basis of base year price of year 2005, in the year 2014 the per capita household consumption expenditure was $725 in India,
$31,469 in US, $25,828 in UK, $22,149 in Japan. It is $603 in Pakistan. The per capita household consumption expenditure is very less in India as compared to US and UK. तो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया, उसका बेस ईयर 2005 लिया गया है, जबकि ये 2014 में ये वाला एनालिसिस किया गया था। उसमें अगर हम पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात करते हैं तो इंडिया का सिर्फ और सिर्फ $725 देखा गया, जबकि यूएस का 31,469 एंड यूके का जो है 25,828 एंड हम जापान की बात करें तो 22,149 देखा गया, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 603 था। तो इस तरीके से अगर हम पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इंडिया का यूएस और यूके के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, ये देखा जाता है। तो ये था ड्यूरेबल गुड्स का पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इंडिकेटर। नाउ लेट अस सी द लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड manner. Level of malnutrition. Malnutrition is such a situation in which the food taken by individual lacks calorie, protein, carbohydrate, vitamins, mineral. In India, in spite of an increase in agricultural production, people with low income are unable to get nutritive foods because of low per capita income and unequal distribution of income. India's information regarding people with malnutrition is as follow. So malnutrition का मतलब कुपोषण। इवन टीवी में ये सारी चीज़ों का बहुत एडवर्टाइजमेंट बार बार दिया जाता है। जितना हमें न्यूट्रिशन चाहिए उतना जब हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो हमारा शरीर माल न्यूट्रिशन यानी कम न्यूट्रिशन के शिकार होने, डेफिशिएंसी के शिकार होने लगता है। इसीलिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इतना कैलोरी, इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना विटामिन, इतना मिनरल मिलना चाहिए, ऐसा जो है कहीं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ हमें बताता है। इंडियन मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ही हमें बार बार बताता है। बट इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें बोलने के बावजूद कई सारे लोग ऐसे हैं जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इन स्पाइट ऑफ एन इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम इंक्रीज देखते हैं, फिर भी जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं कम इनकम होने की वजह से उन्हें जितना खाना खाना चाहिए, उन्हें कितना अच्छा खाना मिलना चाहिए, उतना उन्हें मिल नहीं पाता। लो पर कैपिटा इनकम यानी एक लो पर कैपिटा इनकम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारी रीजन के वजह से आज भी इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोगों को जितना खाना, जितना न्यूट्रिटिव खाना, जितना अच्छा खाना मिलना चाहिए, उतना उनको न्यूट्रिटिव खाना नहीं मिल पाता है। यानी 2400 कैलोरीज जो मिलना चाहिए, हमने बात किया, उतना कैलोरीज उनको नहीं मिल पाता। तो इंडिया का ये जो इंफॉर्मेशन है लोगों के बारे में, कितने माल न्यूट्रिशन के साथ है, किस तरीके से, वो सारी नीचे टेबल पे दिया गया। सो लेट अस मूव ऑन विद दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। टेबल 5.5 measurement of malnourished people in percentage year 1990, 92, 2000, 2002, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014 and 2016. Okay, total malnourished people in percentage 23.7, 17.5, 20.5, 15.6 एंड 15.2। तो यहाँ पे जो माल नरिश्ड पीपल यानी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार जो लोग हैं, कितने परसेंटेज देखे गए इंडिया के अंदर अलग अलग सालों में, उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया। ये जो सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे 2015 एंड 16 में देखा गया। 15-16 में जो इकोनॉमिक सर्वे किया गया उसमें ये डेटा बताया गया था। तो ईयर 1990 और 92 ये 2 साल में देखे तो 23% लोग, 23.7% टोटल पॉपुलेशन में से 23% लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार देखे गए। वही 2000 से 2002 के बीच आफ्टर 10 ईयर्स की अगर हम बात करते तो 17% हो गया। वी कैन से दैट अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव डिक्रीज। कहाँ 23 यानी 6 to 7% का डिक्रीज देखा गया माल न्यूट्रिश्ड पर्सन में। आफ्टर दैट 5 साल के बाद 2005 और 7 के बीच में 20%, 3% का इंक्रीमेंट देखा गया वापिस माल नरिश्ड पीपल के बीच में। इवन 2010 अगेन 5 ईयर्स के बाद अगर देखो तो 15%, 5% का रिडक्शन देखा गया है माल नरिश्ड पीपल के ऊपर। आफ्टर दैट 4 ईयर्स 2014 एंड 16 में 15.6 यानी डेसिमल
4% का डिक्रीज देखा गया था। मेजर एक डिफरेंस नहीं था, बट डेसिमल डिक्रीज कहीं ना कहीं देखा गया। सो नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेबल इज बीन गिवन अप, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. According to the above table, in the time period of 1990-92, India had total 23.7% of the malnourished people. Likewise, in the year 2000, 2002, 2005, 2007, and 2010 and 12, India had 17.15%, 20.5%, and 15.6% of malnourished population respectively. According to FOA 2015 report, the situation of food security in India ranked second in the world in measurement of malnourishment, which indicates poverty in India. तो ऊपर जो टेबल दिया गया, ये टेबल की अगर हम बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड 1990 से लेके 2016 तक देखा गया। 1990 से लेके 92 तक 23%, 23.7% तक टोटल पॉपुलेशन में से लोग माल नरिश्ड देखे गए। उसी तरीके से 2000, 2005, 2010 की बात करें तो उस टाइम पे 17.15%, 20.5%, 15.6% तक लोग टोटल पॉपुलेशन में से माल नरिश्ड के अंदर कैटेगराइज के अंदर आते गए। बट FOA की एक रिपोर्ट 2015 में जो बना था, उसमें ये देखा गया कि अगर फूड सिक्योरिटी, इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो इंडिया को सेकेंड रैंक मिला था, जिसमें मेजरमेंट ऑफ माल नरिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया सेकेंड रैंक पे देखा गया था, जो इंडिकेट करता है कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी किस हाल में देखा जा रहा है। तो एक ये कुपोषण का जो शिकार है, हम जो बार बार मैं बोलती हूँ आपको, इवन टीवी पे भी काफ़ी सारे एड्स इसमें आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है। सो दिस इज एन सीवियर टॉपिक इन द पॉवर्टी रिगार्डिंग द फूड। कितना हमें खाना मिलना चाहिए, उतना जब हमें नहीं मिलता तो उसका वजह से बॉडीज और हमारा आउटलुक रेदर देन दैट हमारे इंटीरियर फिजिकल फीचर्स कैसे चेंज हो जाती है, ये सारी चीज़ें दिखाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नरिशमेंट इज नीडेड फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। प्रॉपर इतना इनटेक होना चाहिए, उतना तो होना ही चाहिए। फिर भी आजकल पॉवर्टी, गरीबी के मारे लोगों को उतना जितना उनको खाना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। ये था सेकेंड टॉपिक। Let us see the third topic, life expectancy and infant mortality rate. अब life expectancy और infant mortality rate चैप्टर नंबर 2 के बाद तो बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, फिर भी पॉवर्टी के साथ ये कैसे कनेक्ट करता है, let us see that in a very detailed manner. Life expectancy means that how long newborn baby is expected to live on an average. The average life expectancy of people in a country is based on nutritive food, cleanliness, pure drinking water and health service. Poor people are deprived of such facilities, so they have low life expectancy. So life expectancy का मतलब तुम्हें पता है, जब भी एक बच्चा नया जन्म लेता है, वो जैसे जन्म लेता है तुरंत वो एक्सपेक्टेड लीव यानी 60-70 ईयर्स तक तो जी सकता है। ऐसे जो एक्सेप्टेशन देखा जाता है उस एक्सपेक्टेड वैल्यू को लाइफ एक्सपेक्टेंसी माना जाता है। हर एक कंट्री में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे अभी इंडिया के अंदर 68 देखा जाता है, तो वो जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करते हैं, हमें कितना अच्छा खाना मिलता है, कितना क्लीनिनेस है, कितना प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, हेल्थ सर्विसेज हमें कैसे मिलता है, ये सारे टॉपिक के ऊपर लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिसाइड किया जाता है। जबकि गरीब लोग जो होते हैं वो ये सारे फैसिलिटी से डिप्राइव्ड यानी वंचित होते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें मिल नहीं पाती है, इसीलिए उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहीं ना कहीं कम है, ये देखा जाता है। सो नाउ लेट अस सी द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. Infant mortality means number of death taking place per 1,000 children born before reaching the age of 1 year. The rate of infant mortality rate depends on availability of health service, mother education, vaccination among children, nutrition of food. Infant mortality is also an indicator of poverty. It respects to poor health services. ठीक है, infant mortality rate की अगर हम बात करते हैं, तुम्हें पता है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दे आर डाइंग फॉर 1000, एक 1000 में से कितने न्यूबॉर्न बेबी 0 से लेके 1 ईयर के बीच में मर जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 1000 बच्चों ने बर्थ लिया है तो इन 1000 बच्चों में से एक साल के अंदर कितने बच्चे मर जाते हैं, वो जो मरे हुए बच्चों का रेट देखा जाता है उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी माना जाता है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करते तो ये किस पे डिपेंड होता है, जो नया नया बच्चे ने जन्म लिया वो तो कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं, सो इट डिपेंड्स ऑन हर मदर ओनली और हिज मदर ओनली। तो उसकी मदर को अच्छा खाना मिलेगा, उसकी हेल्थ सर्विसेज अच्छी होगी तो बच्चे को भी अच्छा होगा, मेडिकल सर्विसेज अच्छा बच्चे को मिलता होगा तो अभी वो बच जाएगा। तो इस तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो हेल्थ सर्विस
ऊपर से मदर की एजुकेशन, मदर का वैक्सीनेशन, बच्चे का वैक्सीनेशन, यू नो दैट न्यू बॉर्न बेबी का वैक्सीनेशन 1 ईयर तक बहुत कंटिन्यूसली 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के गैप में दिया जाता है। तो इस तरीके का वैक्सीनेशन, उसको अच्छा खाना, यानी इफ हिज मदर इज ईटिंग गुड फूड तो उसको अच्छा मिल्क जाएगा, तो उस हिसाब से वो बच जाएगा। तो इस तरीके से अच्छा खाना भी जाना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक पॉवर्टी का इंडिकेटर है, जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सर्विस अगर पुअर हो तो वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर बच्चा खाना नहीं भी खा पा रहा, इवन वी हैव सीन न्यूबॉर्न बेबी को कितनी बार हम क्या करते हैं, कांच में रख देते हैं, इन हिंदी और गुजराती वी से दैट इट कीप इन वेंटिलेटर। तो हेल्थ सर्विस अगर अच्छा हो तो हम डायरेक्ट भी उसको कई मेडिकल सर्विसेज से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हेल्थ सर्विस जहाँ पुअर होता है वहीं से 0 से लेके 1 ईयर तक के बच्चे जल्दी मरने के चांसेस होते। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो वेरियस कंट्री के अंदर जो टेबल है वो नीचे दिया गया है, जो डिटेल में दिया गया है। लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। टेबल 5.6 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कंट्री नॉर्वे, यूएसए, श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द ईयर 2014, इन्फेंट मोर्टेलिटी ईयर इन द 2014। तो दोनों 2014 का है, तो सर्वे 2015 का होगा, तभी लास्ट ईयर का सर्वे दिखाया गया। 15 और 16 में सर्वे किया गया होगा, इसलिए 2014 का टेबल बताया गया। तो नॉर्वे का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 81.6 है, यूएसए 79.1, श्रीलंका 74.9, चाइना 75.8 एंड इंडिया 68.0। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं। नॉर्वे में 2, यूएसए में 6, श्रीलंका 9, चाइना 10 एंड इंडिया 39। तो यहाँ पे नॉर्वे की बात करते हैं तो एक बच्चा जब बॉर्न अप होता है तो ये माना जाता है कि वो कम से कम 81 ईयर्स तक तो नॉर्वे में रह सकता है, जबकि इंडिया के अंदर 68 ईयर्स तक रह सकता है। उसके आगे कोई चांसेस, अगर वो जी जाता है तो उसका नसीब, बाकी उसके आगे गवर्नमेंट जो खाना हमको मिल रहा है उस हिसाब से 68 के ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो इस तरीके से ये जो सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में www.dataworldbank.organization से लिया गया है। ये कंपाइल्ड भी देखा गया है, HDR का जो रिपोर्ट है उसमें से भी ये डेटा एग्रीगेट किया गया, ये माना जाता है। और इसी तरीके से अगर आप देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का भी अगर हम डिफरेंशिएट, नॉर्वे में हर 1000 बच्चे में से 2 बच्चे मरता है, जबकि इंडिया के अंदर हर 1000 बच्चे में से 39 बच्चे मर जाते हैं। जबकि श्रीलंका, चाइना, ये सारी चीज़ें 10 तक ही है, बट हम 40 के स्कोर को टचअप कर रहे हैं। जिसमें हमें कम होना चाहिए उसमें हम ज़्यादा है, जिसमें हमें ज़्यादा होना चाहिए उसमें हम कम देखे जा रहे हैं। सो नाउ लेट अस रीड द फैक्टर्स ऑफ द एनालिसिस। According to the above information, in Norway, life expectancy is 81.6 year, in America 79.1 years, in Sri Lanka 74.9 years, in China 75.8 years, whereas in India it is 68.0 years, which is even less than China and Sri Lanka. तो यहाँ पे अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करते हैं, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उस हिसाब से, तो नॉर्वे का 81.6 जो कि हमने टेबल पे देखा था, उसके बाद अमेरिका की बात करें तो 79 है, श्रीलंका 74 है, चाइना 75 है, बट इंडिया सिर्फ और सिर्फ 68 है, जबकि श्रीलंका और चाइना के कंपैरेटिव भी इंडिया कम है, ये देखा जाता है। इन द केस ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन नॉर्वे, 2 child per 1000 dies, in America 6, in Sri Lanka 9, in China 10, whereas in India the rate is 39, which is very high. अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करते हैं उसमें भी अगर हम देखें तो नॉर्वे में सिर्फ 2 बच्चे मरते हैं 1000 में से, जबकि हमने डिस्कस किया है अच्छा अमेरिका में से 6 ही मरते हैं, श्रीलंका में 9 और चाइना में 10 ही देखे जाते हैं, जबकि इंडिया में 39 देखे जाते हैं, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ये माना जाता है कंपैरेटिवली टू द गिवन डेटास। सो आज का टॉपिक यहाँ तक रखेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक इन अ वेरी वेल मैनर। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। So students, I hope that you all have understood the today's topic in a very well manner. So today we have seen in a very detailed manner about the indicators of the poverty. What are the indicators of the poverty? The components or the things that are factors that are used to show the level of the poverty, the measurement of the poverty, the nature of the poverty are considered as the indicator of the poverty. To know the level of the poverty and do the measurement of the poverty, we must know about the indicators of the poverty in a very well manner. So today we have covered up the 3 indicators of the poverty in a very best manner. So let us discuss about that in a very short summarization. First one was per capita
household consumption expenditure. So one individual family, not only individual person, a family, when a family is try to do the consumption expenditure on the durable goods such as car, washing machine, computers, such things are considered as the per capita household consumption expenditure. Comparatively to the developed country, the developing country is always having the less per capita household consumption expenditure. Why? Because here they are developing, still the poverty is being seen up in that level. So first indicator was this. Second, we have seen about the malnutrition, level of malnutrition. So the proper calories, the vitamin, minerals that a person should get up, when he is not able to get up such things, it is considered the malnutrition. Even we have seen different examples of different years from 1990 to 2014 to 16, we have seen the malnutrition portion. So starting it was having from 23%, which slowly increased and decreased. Now it came to a stability of 15.6% on the 2014. So lastly, we have read up to the 15.2% of malnutrition among the total population. The 15% people are having the malnutrition. So after this topic, we have seen the life expectancy and the infant mortality rate. So if you are talking about the life expectancy or infant mortality rate, so life expectancy means the third indicator, life expectancy and infant mortality. Life expectancy means when a child is born up, at that moment when it is decided that it must live up to this year, 65, 68, 70, in this manner, it is considered as life expectancy. How it is decided? It is decided on the basis of the nutritive foods and the health services, cleanliness and the surrounding atmosphere of any individual. So there also we have seen a table of the year 2015 in which the Norway was having 81.6% of average life, but the India is having only 68, comparatively to Sri Lanka and China, which were having above 70, but India is below the 70, which means 68, not even touched the 70. After that, we have seen in detail the infant mortality rate from 0 to 1 year, from 1000 of child, how many child are not able to survive due to the inefficient or unnutritive food. So when a child is born up, if it is not able to live or sustain up till 1 year, it means there is the poverty of the health, proper health service is not there, nutritive food is not there. These all things have been seen up. So in this also we have seen the table of 2014 in which we have seen Norway was covering up 2 people, only from 1000 only 2 child are not able to live. Infant mortality rate was seen up to 2 only, but in India it was 39, the highest one among the table we have seen. Even China was having the 10, Sri Lanka was having the 9. Rather than that, comparative to all things, only the India had the highest one. So until this we have seen in a very detailed manner. I hope you all have understood this topic in a very well manner. I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.